Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 5 of basic concepts. We are here with another numerical जिसमें हमने Talegans theorem को use करना है to find out the unknown components by using calculation of power. So we have many components. Some will be source and some will be loads. In this case, हमने individually सबकी power calculate करनी है and then we will sum up all the powers to get the unknown values. So we have 2 ampere of current that is entering on the negative side of 6 volt. So essentially the power in this 6 volt आपके पास जो 2 ampere का current source है इसमें जो power है that will be negative power and that will be our source power. So power in this component that will be minus 6 into 2 and that will be minus 12 watts. Similarly we have another component that is component number 3 और इसमें आपके पास करंट नेगेटिव साइड में एंटर हो रहा है. इट मीन्स अगेन दैट विल बी आवर सोर्स. सो 3 into 10, so power in component 3 that will be minus 30 watts. Now you have component number 1 जिसमें आपके पास जो करंट है that is entering on the positive 6 volt. It means that is our load component. So I naught आपने कैलकुलेट करना है. So P in the component number 1 that will be 6I naught. इसको हम एज इट इज रहने देंगे और ताकि बाद में हम ये अननोन जो वेरिएबल है I naught इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें. सिमिलरली वी हैव अ 4 वोल्ट सोर्स जिसमें आपके नेगेटिव साइड में करंट एंटर हो रहा है एंड लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. सो इट मीन्स दैट विल बी आवर सोर्स. सो दैट विल इज प्रोवाइडिंग पावर टू द सिस्टम. सो पावर that will be minus 32 watts. We have this component जिसमें 9 ampere current is entering on the negative side of 12 volt. So 12 into 9, so that will be minus 108 watt. ये भी आपके पास एक सोर्स है. Now यहाँ पे एक सोर्स आपको प्रेजेंट किया गया है. दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो विद पैरेललोग्राम. तो ये आपके पास जो Ix है, Ix की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं दैट इज 2 एम्पेयर्स. सो 2 into 8 जो वोल्टेज आपके पास यहाँ पे दैट इज 16 वोल्ट और 16 वोल्ट की पॉजिटिव साइड में आपका करंट 11 एम्पेयर एंटर हो रहा है. सो इट मीन्स दिस इज अ सोर्स जो आपका लोड के तौर पे एक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बैटरी होगी जो चार्ज हो रही है. सो द पावर in this case that will be 16 into 11 and that is 176 watts. Now we have calculated all the power components in this circuit. अब हमने इन सब का सम लेना है और to make it और इसको 0 के इक्वल हम इक्वेट करेंगे ताकि Talegans theorem हम अप्लाई करें to find out the value of 6I naught. So minus 30 plus 6I naught minus 32 minus 108 minus 12 plus 176. आपके पास अब ये कंपोनेंट्स कितने हो गए? कंपोनेंट्स पूरे हो गए इज इक्वल्स टू 0. 6I naught हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उसके लिए हमें इसका सम करना है. सो माइनस 30 प्लस माइनस 32 माइनस 108 माइनस 12 प्लस 176. तो ये आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज -6. -6 आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6I naught is equals to 6. So you have the value I naught is equals to 1 ampere. ये जो आपके पास I naught है this is basically equals to 1 ampere. So हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने Talegans थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है. So here we have another numerical जिसमें स्टेटमेंट क्या कहती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ix. So यहाँ पे अगेन वी हैव 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स आपको गिवन है और इसमें करंट भी आपको गिवन है. सो
the current is entering on this side and this is the positive side of this component. So the power in this component, that will be plus 25 watts. 1 into 25, that will be 25 watts. Similarly, 5 ampere current is entering on the negative side of the voltage. तो ये आपके पास एक सोर्स होगा और ये करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है. So the power in this component, in this branch, ये जो इस component में जो power deliver कर रहा है, that will be minus 125 watts. Similarly, in the third branch we have two components, जिसमें इस branch में एक ही current flow कर रहा है, that is Ix and that is unknown. तो Ix आपका first of all नेगेटिव साइड ऑफ 15 वोल्ट में एंटर होगा. तो ये आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, दैट विल बी -15 Ix, और Ix अगेन एंटरिंग इन द नेगेटिव साइड ऑफ 10 वोल्ट. सो द टोटल पावर डिलीवर्ड हियर, दैट विल बी -10 Ix. Ix आपने फाइंड आउट करना है. अब 2 एम्पेयर करंट आपका यहाँ पे पॉजिटिव साइड में एंटर हो रहा है ऑफ द 15 वोल्ट. तो जो पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, दैट विल बी प्लस 30 वॉट्स. सिमिलरली 2 एम्पेयर करंट इज एंटरिंग ऑन द 10 वोल्ट साइड ऑफ द सोर्स. ये आपके पास सोर्स है लेकिन एक्टिंग एज अ लोड. दिस विल बी अ बैटरी दैट इज चार्जिंग. सो द पावर कंज्यूम्ड विल बी 20 watts plus 20 watts. So now according to Telegans theorem, you have to add all the components power. So 25 minus 125 minus 15 Ix minus 10 Ix plus 30 plus 20 is equals to 0. Now this will be, this is basically 10 Ix. -25 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. सो दैट विल बी 25 minus 125 plus 30 plus 20. सो दिस इज -50, और जब हम ये राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 50. So you have Ix that is equals to -2 amperes. Now -2 ampere का मतलब क्या है कि आपके पास Ix with the green arrow, इसकी जो वैल्यू आई है that is -2 amperes. लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट जो एक्चुअल करंट है, that is moving opposite in this circuit, क्योंकि मैं रेड एरो से प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो अगर मैं इस रेड एरो के अगेंस्ट इस करंट की वैल्यू देखूं, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 2 एम्पेयर्स. सो एक ही कंडक्टर में अगर आपके पास करंट एंड आपके पास इस डायरेक्शन में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेट्स से दिस इज 5 एम्पेयर. तो सेम कंडक्टर में इफ यू टेक द रिवर्स डायरेक्शन, तो दिस करंट विल बिकम्स -5 एम्पेयर. तो यहाँ से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से आपको करंट की डायरेक्शन का पता चलेगा और टेलेगन्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है. You have seen in 2 of the numericals. I'll come with more numericals as well. So see you next time. Thank you very much.